कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के एहतजाज का आज 21वां दिन है। बावजूद इसके हुकूमत और किसान अपने अपने स्टैंड पर जमे हुए हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर पर किसानों को हटाए जाने की मांग की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हुकूमत को नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले को लेकर मरकजी हुकूमत के अलावा पंजाब और हरियाणा सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस बीच मरकजी वजीर ज़राअत ने मध्य प्रदेश में किसानों के इजलास से खिताब किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने अपोजिशन पर किसानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। उधर किसान तंजीमों का आंदोलन दिनों दिन तेज होता जा रहा है। एहतजाज में अपोजिशन जमातों के अलावा अब समाजी तंजीमें, वकील और दीगर लोग भी शामिल हो रहे हैं। जो तहरीक अब तक शुमाली हिंद तक महदूद दिख रही थी, अब शुमाल हिंद में भी बढ़ती जा रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी लोग किसानों की हिमायत में सड़कों पर उतरने लगे हैं। तो ये आप 5 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में भी अब लोग किसानों की हिमायत में सड़कों पर उतरने लगे हैं और शुमाली हिंद के साथ साथ जनूबी हिंद में भी इसका असर नज़र आता है। और केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी लोग किसानों की हिमायत में सड़कों पर हैं। This rally itself shows a strength of the Amaravati agitation. Amaravati, not only the farmers, all the citizens in Andhra Pradesh, everybody wants Amaravati is the capital for Andhra Pradesh. Today, the completion of 1 year agitation, Vijayawada people giving a big gathering and they are giving a Sanghi Bhavam to the Amaravati agitation. Now this agitation, let it be goes any days, but this government cannot go from this Amaravati. They should accept the Amaravati as the capital. The central government also should involve, and they should break this agitation, and also they should come down to keep Amaravati as the capital. This is the Vijayawada public. I appeal to the citizens of India today. You have been seeing the protests in Delhi over the last couple of days. You've seen the violence against farmers that has been incited by the government. But let me tell you today what the state government of Andhra Pradesh and the national government as well as the national media has failed to inform you. The farmers of Andhra Pradesh have been rioting for the last 365 days. 365 days we have been fighting for what's rightfully ours. Our farmers have donated 33,000 acres of land for the development of a new state capital. So I ask you today, is it fair to the farmers? Is it fair to the farmers that have been fighting on the streets for the last 365 days? We have seen farmers die. We have seen hundreds of farmers die at the hands of the police. That farmers in this country are not safe. No matter whether it's Punjab or Andhra Pradesh, we have seen the atrocities against our farmers. Have been supporting the protests by the peasantry of India. In our opinion, the BJP thought that during the COVID pandemic, it was very easy to implement the anti-people, anti-farmer laws in the country. But the farmers think that this is a more dangerous virus than the COVID-19. This is an anti-democratic virus creeping into all sectors of life, and the people of India, under the leadership of the peasantry now, is going to topple the ruling front in Delhi if they are not willing to withdraw the anti-people laws. मैं किसानों से पूछना चाहता हूँ, राजनीतिक पार्टी बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं हाईजैक करने के लिए। राजनीतिक पार्टी पीछे से उनको एंकरेज करने के लिए प्रयास कर रहे, गलत रास्ता में ले जाने के लिए प्रयास कर रहे। मगर मैं किसानों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसान है पंजाब का, पंजाब किसानों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, राजनीतिक दलों जो खेलते हैं उसमें नहीं घुसना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। भारत सरकार किसान का हित का सरकार है। मोदी सरकार किसान का आशीर्वाद से सत्ता में आए। हम किसान के हित के लिए काम करने वाला है। किसान के खिलाफ एक शब्द भी बिल में नहीं है। फिर भी जो भी सुझाव किसान राजनीतिक दूर क्षेत्रों से हटकर, राजनीतिक दलों को दूर रखकर जो भी सुझाव भारत सरकार को देना चाहते हैं, भारत सरकार उस सुझाव को लेने के लिए तैयार है। मगर जो अरविंद केजरीवाल हो, जो कांग्रेस पार्टी हो, अन्य राजनीतिक दल जो भी हो, उनसे दूर रहना चाहिए। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से मोदी जी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ
ये चालाकी कर रहे हैं। इसलिए मैं राजनीतिक दलों से दूर रहने के लिए मैं किसान यूनियन से, किसानों से यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देश में एनडीए सरकार ने किसान के खिलाफ बिल लाने के बाद पूरा देश का किसान इसके खिलाफ करते हुए देश की राजधानी दिल्ली में आजू बाजू किसान सब मिलके इतने दिन से 19 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर सरकार ने कुछ भी सिर्फ डिस्कशन के बारे में टाइम पास करते आ रहे। और एक तरफ ये किसान नहीं है, ये ब्रोकर है, ये कमीशन एजेंट है, ऐसी बात इन लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए वही सरकार फिर इन लोगों से नेगोशिएशन और डिस्कशन कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर ब्रोकर है, कमीशन एजेंट है, उन लोगों से आप क्यों बात कर रहे हैं? अगर सही भी किसान है, उन लोगों की डिमांड को क्यों नहीं मान रहे आप लोग? पहले दिन से किसान की बिल किसान का फांसी के बराबर होता है, ये हमने भी नहीं बताया, आपका अलायंस पार्टनर भी इसके खिलाफ रिजाइन करके चले गई। तो सोचिए बीजेपी के लोग, आप जो पकड़े उसके साथ में ही चलना बोल के नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। अगर आपका फैसला गलत है, ये पब्लिक बताए, तो उसके फैसले के ऊपर फिर एक बार सोचना चाहिए और फैसला बदलना चाहिए। ये आज नहीं हो रहा है, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़े आने वाला दिन में बहुत खतरा होगा। किसान देश में पूरा, कोई लोग बोलेगा सिर्फ पंजाब का और दिल्ली में चल रहा है, ऐसा नहीं है। गांव गांव में किसान इसका खिलाफ